والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے جو آیت الکرسی کے بعد میں. پہلے یہ آیت مشہور نہیں تھی، اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے. ہاں، آیت الکرسی کو جانتے تھے. آیت الکرسی وہی جھاڑ پھونک کرنے والوں کے لیے، کیسا ہو گیا تو یہ پڑھ کر پھونک لو، ایسا ہو گیا تو وہ پڑھ کر پھونک لو، الگ الگ باتیں اپنے اپنے حساب سے. لیکن اس آیت کو نہیں جانتے تھے. لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کافی مشہور آیت ہے. جس نے بھی ہمارے پروگرام سنا ہے، جس نے بھی، تو اس آیت سے اس کو واقفیت ہوگی. کیوں کہ اصل مقصد ہے زندگی کا طاغوت سے انکار. اگر آپ طاغوت کا انکار نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کا ایمان 6 معنی دارت. کیا معنی ہے اس کا؟ ابھی ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے 9 چیزیں ایسی ذکر کی کہ جو یہ نکات ایسے ہیں 9 کہ جمہوریت کو اسلام سے جدا کر دیتے ہیں. ووٹ کے سلسلے میں کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئی ہیں. کچھ اور باتیں بھی اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مین استھمب ہے. ووٹ نظام جمہوریت کا مین پلر ہے. یہ نہیں تو نظام جمہوریت ہی نہیں. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں کہ عموماً اس نظام کے یعنی نظام جمہوریت کے طاغوت ہونے کا مقدمہ اولا تو بڑی آسانی سے مان لیا جاتا ہے. آپ دیکھو گے کہ عام طور سے لوگ اب ماننے لگے، ہاں ٹھیک ہے یہ نظام طاغوت ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نظام طاغوت ہے. لیکن ووٹ اور الیکشن میں شرکت کے لیے چور دروازے تلاش کرتے ہیں. جبکہ ان کو یہ اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ نظام طاغوت کا ایک مضبوط پلر ہے. اس کے بغیر نظام جمہوریت قائم ہو ہی نہیں سکتا. تو عموماً اس نظام کے طاغوت ہونے کا مقدمہ اولا تو بڑی آسانی سے مان لیا جاتا ہے، مگر جب اس سے لازم آنے والے امور اور احکام پر بات ہوتی ہے. نظام طاغوت تو آپ نے مان لیا، لیکن نظام طاغوت کو مان لینے کے بعد میں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نظام جمہوریت نظام طاغوت ہے، اب اس سے لازم آنے والے جو امور ہوتے ہیں بھائی، اس کا جو ایک پارٹ ہے، اس کا جو ایک حصہ ہے، اس کا جو ایک پلر ہے مضبوط پہیا جو اس کی بنیاد ہے، ان معاملوں میں جب بات ہوتی ہے تو یہ کہہ کر سرے سے پہلے مقدمہ کو ہی مشکوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے
तागूत तो है। अंदाज कहने का, ठीक है तागूत तो है मगर ऐसा भी नहीं कि सचमुच की ठन जाए। हाँ ठीक है तागूत है, लेकिन ये कहां से ला लिया आपने कि इनके दरमियान ठन जाए, कशमकश होने लगे। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे तो सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सख्त गो होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बाअखलाक ना होते तो ये काम कहां पहुंचता, जबकि कुरान उनके अखलाक के बारे में बयान फरमाता है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के बड़े मर्तबे पर फायज। फिर मौलाना साहब की तकरीर यहां से शुरू होती, फिर यहां से वो अपनी बात को साबित करने में लग जाते हैं। जबकि आप देखोगे कि जिस जमाने में भी तागूत रहा, चाहे मूसा के जमाने में रहा हो, ईसा के जमाने में रहा हो, इब्राहिम के जमाने में रहा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रहा हो, या दीगर दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में रहा हो, हमेशा तागूत जब भी रहा तो वक्त का नबी उनसे टकराया, वक्त के नबी के साथ, और उनके साथ कशमकश जारी रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमरूद के साथ में नहीं जमी, मूसा और हारून की फिरौन के साथ में नहीं जमी, ईसा की अपनी कौम और उसके सरमायादार और उसके मालदार लोगों के साथ में नहीं जमी, ईसा अलैहिस्सलाम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ले लो तो आपके अपने घर वालों ने आपका इनकार कर दिया। सबसे पहले कहने वाला ये कि तब्बल या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा, सबसे पहले कहने वाला ये। इससे पहले कहने वाले लोग वो ये कि माजरबना इल्ला अलैका सिद्का, हमेशा आपको हमने सच ही कहता पाया, आप जो बोलेंगे वो सच होगा। लेकिन पिन करने वाले लोग मौजूद रहते हैं, कभी नहीं जमी उसके साथ। और इससे पहले भी, इनसे पहले भी जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, किसी नबी की वक्त के तागूत के साथ, वक्त के फिरौन के साथ, वक्त के नमरूद के साथ नहीं जमी, दोस्ती नहीं रही उसके साथ। अब अगर आपकी दोस्ती वक्त के फिरौन के साथ है, वक्त के नमरूद के साथ, वक्त के तागूत के साथ, तो आपका ईमान पक्का या कच्चा? एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ईमान उस वक्त पक्का था जब वो तागूत से टकरा गए थे। और आप ये कहते हैं कि हाँ ठीक तो है। आदमी कैसा बोलता है कि हाँ ठीक है बोल रहे हो आप, तो ऐसा हाथ ले जाता, हाँ ठीक तो है कि ये निजाम तागूत है, मगर ऐसा भी नहीं कि इससे ठन जाए, ऐसा भी नहीं कि इससे कशमकश होने लगे। इसी वजह से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इससे पहले के जो हमारे एपिसोड थे, ये 42वां एपिसोड है, इससे पहले के 41 एपिसोड जो हम में जो कुछ हमने बयान किया है, अगर आप उसको गौर से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हक बातिल के साथ, जब भी हक आता है तो बातिल मौजूद होता है और बातिल को जाना ही पड़ता है। हक आता है बातिल से टकराने के लिए ही। कुरान बयान फरमाता है जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल जो आया है वो इसीलिए कि वो पिस्पा हो जाए। हमेशा हक की बातिल के साथ में कशमकश रही, हमेशा। लेकिन आप इस जमाने में जी रहे हो कि हक और बातिल दोनों के दरमियान दोस्ती। गोया यह हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है, नमरूद के साथ में आपकी दोस्ती है। मूसा और हारून मौजूद हैं, मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं और उनकी वक्त के फिरौन के साथ में उनकी दोस्ती। फिर कुछ सियाने जो खड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि अरे मियां वहीं का तो खा पी करके पले बड़े हो मूसा, फिरौन के यहां तो खा पी करके पले बड़े हो,
फिर बड़े होकर के जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद। जो अल्फाज लोगों के होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो इन चीजों में लाकर के आपको महदूद कर दिया गया। इसीलिए हमने गुजारिश की कि पीछे के एपिसोड अगर आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आप और सुनने के बाद में अगर आप मुत्तफिक हो जाएं कि इस मुल्क पर झूठ मूठ का तागूत सवार नहीं, बल्कि वैसा ही है जैसा हुआ करता था, जैसा मूसा के ज़माने में था, जैसा ईसा के ज़माने में था, जैसा इब्राहिम के ज़माने में था, और जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में था। तो अब अगर ऐसा आपको समझ में आ जाता है तो आइंदा भी जो कुछ बातें और रह गई हैं और उनको हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं, तो आइंदा की बातें भी आपको समझ में आएंगी, वरना आपको बात समझ में नहीं आएगी। सीधी बात, नो बकवास। अब आगे देखिए आपके अगर आपने फिर तागूत को समझ लिया कि हाँ ये तागूत है, तो तागूत को जान लेने और फिर उसे वोट देने का मतलब समझ लेने के बाद उसका शरीयत में हुक्म पूछना कोई माना ही नहीं रखता। नहीं, आपने सुन लिया, समझ लिया कि तागूत क्या है, अब पूछ रहे हो कि वोट देने का मतलब क्या है, शरीयत में इसका हुक्म क्या है। आपने तागूत को मतलब समझा नहीं। भाई आपसे यह बता दिया गया कि सूद हराम है, सूद हराम है, आपको समझ में आ गया कि सूद हराम है। आपने पढ़ लिया कुरान में, आपको मालूम हो गया कि हाँ सूद हराम है। अब सूद की शरई हैसियत क्या है मौलाना साहब, समझ रहे आप, यह क्या माना रखता है। इस सवाल का माना यह है कि फिर आपने सूद के मामले में अच्छी तरह से समझा नहीं। इसीलिए तागूत के सिलसिले में जब भी बात आती है और आप अगर उसके सिलसिले में पूछ रहे हैं तो पूछने से पहले तागूत के सिलसिले में अपनी मालूमात में इजाफा कर लें। इस सिलसिले में हमारे कई प्रोग्राम मौजूद हैं, उन प्रोग्रामों को आप सुने इत्मीनान से, और अगर ऐसा लगता है कि तशनगी महसूस हो रही है सुनने के बाद, समझने के बाद में, तो फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जब चाहे आप राब्ता कर सकते। अगर आप को यह इल्म नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ यह इल्म नहीं है बल्कि आप ईमान भी रखते हैं कि यह निजाम बातिल है, आपको इल्म तो है ही, लेकिन इसके बाद आप ये भी मान रखते हैं कि निजाम बातिल है और उसके कारसाज अल्लाह के शरीक हैं, और उसके कारसाज अल्लाह के शरीक हैं जो नंगी फिल्मों और तवाइफ के कोठों से हजार गुना बढ़कर अल्लाह के गजब और उसके अजाब को दावत देने वाले हैं। तवाइफ के कोठों में अल्लाह का अजाब, या फिर नंगी फिल्में जहां चल रही वहां पर अल्लाह का अजाब। उससे बड़ा अजाब यह है कि आपने तागूत को अपना सब कुछ समझ लिया है। तो ये कि और उसके कारसाज अल्लाह के शरीक हैं जो कि नंगी फिल्मों और तवाइफ के कोठों से हजार गुना बढ़कर अल्लाह के गजब और उसके अजाब को दावत देने वाला है। अब जब सब कुछ आपने समझ लिया कि भाई देख रहे हो आप कि एक आदमी जा रहा है, जाने के बाद वोटिंग हो रही है, चुन करके जा रहा है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, तवाइफ खाने के लाइसेंस मिल रहे हैं, ब्लू फिल्मों के लिए बाज़ाब्ता सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, उसको पास कर रहा है। पहले की फिल्में जो आती थी उसमें थोड़ा सा भी अगर ऐसा कुछ समझ में आता था तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करता था, लेकिन अब सेंसर बोर्ड सब कुछ पास कर रहा है, सब पास हो रहा है, ब्लू फिल्में पास हो रही हैं, और मालूम नहीं क्या क्या पास हो रहा है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद में फिर आप उसका साथ दो, तो फिर ऐसे तागूत की 5 साला तकरीब विलादत में शिरकत तो जुर्म क्यों ना होगी। तकरीब विलादत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं साहब कि जमहूरियत हर 5 साल के बाद में पैदा होती, तकरीब विलादत में आप कैसे शरीक हो सकते हो। आप बर्थडे में शरीक नहीं होते, मीलादुन नबी आप नहीं मनाते,
मिलादुन नबी आप नहीं मनाते, और आप क्रिसमस डे नहीं मनाते, लेकिन जमहूरियत की जो तकरीब विलादत है उसमें आप बराबर शरीक होते हो। तो फिर आपने समझा क्या? दीन को समझा क्या आपने? उस पर आपका अमल कैसे? जबकि हाल यह है कि यह जमहूरियत का जो भी रास्ता है वो सीधे आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाला है, सीधे। इसमें कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं, जर्रा बराबर शक नहीं कि जमहूरियत का जो भी रास्ता है आपको वो जहन्नम के दरवाजे के करीब लेकर चला जाता है। अब आप अगर ऐसा कहें कि जहन्नम और हलाकत के लिए जब ये दरवाजा है तो उसे खोलने के लिए जोर मारते खिलकत का साथ देना, कि एक दरवाजा है, आप देख रहे हो कि उसके पीछे आग जल रही है। अब जितने भी लोग हैं वो जोर लगा रहे हैं कि दरवाजा किसी तरीके से तोड़ दिया जाए या खोल लिया जाए, जोर लगा रहे हैं। तो जोर मारती खिलकत का साथ देना, और जब वो खुल जाए तो गुजरने वालों के जुर्म से ला ताल्लुकी का इजहार करना, या ये कहना कि मैं ना भी खोलता तो वो खुल ही जाता, मैं ना भी खोलता तो वो खुल ही जाता। आदमी कहता है ना कि मैं अकेला अगर वोट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी तो दे। अगर मैं दरवाजे को धक्का नहीं देता तो दरवाजा तब भी खुलना था। तो दरवाजा खोलने वालों के साथ आपकी शिरकत हुई नहीं। जब आपकी शिरकत पूरी भीड़ के साथ दरवाजा खोलने वालों के साथ में है, अब जाहिर सी बात है कि जब एकदम से पीछे से रेल आएगा तो आप कहां जाओगे? आग से बच सकोगे आप? तो ये कौन सी मंतिक है भाई कि अगर मैं वोट देने नहीं जाता, अगर मैं वोट नहीं देता तो मेरे एक के वोट न देने से क्या होता है? अगर यही बात 24-25 करोड़ लोग कहें, समझ रहे बाबा? क्या एक आदमी बोल रहा है कि मैं अकेले वोट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन यही बात को अदा करते हैं 24-25 करोड़ लोग। अब ये एक की बात नहीं हुई, 24-25 करोड़ लोगों की बात हो गई। अब जब 24-25 करोड़ लोगों की ये बात हो गई और सब अपने मुंह से एक ही लफ्ज निकाल रहे हैं, तो 24-25 करोड़ अहमियत रखता है नहीं रखता? हाँ ठीक है, दूसरे जहन्नम में जा रहे जाए, लेकिन आपको जहन्नम से बचने की कोशिश करना है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब आपका हाल यह है कि जहन्नम का दरवाजा लगा हुआ है, आप और आपके अहलो अयाल लोगों के साथ मिलकर धक्का दे रहे हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि फिर जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो मोटी मोटी मंतिक़े जो लेकर के आते हैं लोग कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा साहब, तो भाई कम अज कम ये होगा कि 25 करोड़ लोग जहन्नम में जा रहे थे, लेकिन उन्हीं 25 करोड़ लोगों में से 25 लोग ऐसे थे जो मना कर रहे थे कि तुम मत जाओ। तो वो ये समझ रहे थे कि नहीं, तुम तो 25 लोग हो, हमारी तादाद तो करोड़ों में है, और हम बोल रहे हैं कि ऐसा, हम अगर खोलने के लिए जा रहे हैं तो हम गलत नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि दिन है तो हम गलत नहीं है। जबकि लाइट जल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लाइट की रोशनी है, ये सूरज की रोशनी नहीं है, दिन की रोशनी नहीं है, ये अच्छी तरह से देख रहे हो आप। लेकिन ये जो जमहूरियत की पट्टी आंखों में बांध दी गई, जमहूरियत की पट्टी जो आंखों में बांध दी गई है, फिर उसके बाद में आदमी को कुछ नजर नहीं आता। इसलिए आपको वो पट्टी को निकाल कर फेंकना होगा, आपको उस पट्टी को निकाल कर फेंकना होगा। और अगर आपने उस पट्टी को निकाल कर नहीं फेंका तो आगे आप अपने अमल के जिम्मेदार खुद, आगे आपके साथ जो कुछ होने वाला है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाना था। और जाहिर सी बात है कि जब खुद बच जाते, अपने अहल अयाल को बचाने की कोशिश करते, फिर लोगों के पास भी आप लोगों को भी तबलीग करते आप कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے وہ یہ کہ عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ووٹ اچھے یا برے نظام کا اختیار ہوتا ہے، حالانکہ اچھے اور برے نظام کا اختیار ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ چاہے اچھے لوگوں کو چن لو یا برے لوگوں کو چن لو۔ اسی چیز کو لے کر مولوی لا کر کے گواہی دیتا ہے، مولوی لا کر کے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہے یا حدیث پاک سے دلیل لا کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہیں گواہی دینی ہے، تمہیں گواہی دینی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ ووٹ کا نام ایک گواہی، ووٹ کا نام ایک گواہی۔ اگر ایسے لوگ آپ کے سامنے یہ بات کریں یا ایسے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہو تو وہ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ووٹ اچھے یا برے نظام کا اختیار ہوتا ہے، حالانکہ سبھی امیدوار اسی ایک نظام کے تحت اور اسی کے دائرے میں انتخاب لڑتے ہیں، نظام جمہوریت کے دائرے میں۔ نظام جمہوریت میں ہے کہ آپ کو اگر انتخاب لڑنا ہے تو نامینیشن بھرنا ہے۔ پچھلے درسوں میں آپ نے وہ حدیث سنی جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ خدا کی قسم جو عہدے کا طلبگار ہوگا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے نامینیشن بھرا، آپ فیل۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، آپ محب رسول ہو، آپ دوسری زبان میں عاشق رسول ہو، آپ اب نبی کی بات کو اپنے پیروں تلے روند کر آپ نامنکن پتر بھر رہے ہو، نامینیشن لیٹر بھر رہے ہو، آپ نامینیشن کا فارم بھر رہے ہو، آپ نے نامینیشن کا فارم بھر دیا، اب آپ کا فارم چلا گیا، پھر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو۔ ایک طرف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما رہے ہیں کہ جو عہدے کا طلبگار ہوگا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے، تم بڑھ چڑھ کر کے عہدہ مانگ رہے ہو۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوئے یا ابراہیم لنکن کی؟ اب تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا ابراہیم لنکن سے؟ ایسی صورت میں تمہاری محبت تو ابراہیم لنکن سے ہو گئی۔ اب کل قیامت کے دن، کل مرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین لوگوں کو رکھے گا تو اس وقت تم کہاں ہوگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد آدمی اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے اس نے محبت کی، جس سے اس نے محبت کی۔ پچھلے کے درسوں میں اگر آپ سنو گے تو یہ بات آئی ہے اور پھر اس بات کو ہم پھر ذکر کر دے رہے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ بھی بولتا رہے لیکن اس کا عمل گواہی دیتا ہے، اس کا عمل گواہی دیتا ہے کہ کس حد تک یہ جو کچھ اپنی زبان سے بول رہا ہے، یہ جو کچھ اپنی زبان سے بول رہا ہے اس کو کس حد تک نبھا رہا ہے۔ اس کا عمل گواہی دیتا ہے، اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ تم زبان سے قرار کرو کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، لیکن جا کر کے تم مندروں میں سر ٹیکو تو لوگ کہیں گے کہ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ کوئی قبر کے سامنے جا کر کے سر ٹیکتا ہے تو تم اسے مشرک کہنے لگتے ہو، ہے مشرک ہے، لیکن تم نے غیر اللہ کے سسٹم ہی کو مان لیا، اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے، پھر اپنے آپ کو معاہد سمجھتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اسی نظام کے تحت ہوتا ہے اور اسی کے دائرے میں انتخاب لڑتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد اسی نظام کی متعین کی ہوئی حدود سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اب اگر جیت گئے تو جیتنے کے بعد یہ جیت گئے، جیتنے کے بعد میں یہ جو نظام ہے اس نظام کی روگردانی نہیں کر سکتے، اسی کے مطابق وہ سارے کام کریں گے اسی کے مطابق۔ اس میں جو چیز صحیح ہوگی اس کو وہ صحیح مانیں گے، اس میں جو چیز غلط ہوگی وہ اس کو غلط مانیں گے۔ کامیاب ہونے کے بعد اسی نظام کی متعین کی ہوئی حدود سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اس نظام کا متعین کیا ہوا کردار ادا کرنا ان کا واضح ترین مقصد ہوتا ہے۔ جیتنے کے بعد میں ان کا مقصد کیا ہے کہ اس نظام نے جو کچھ متعین کر دیا ہے ویسا ہی کردار اس کو نبھانا ہے۔ اسلام نے کیسا کردار نبھانے کے لیے کہا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اسلام آپ کو کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔
कोई सरोकार नहीं उसको। अब अगर इतना भी नहीं समझ में आया हो तो कुछ बातें हमारी आगे की ओर सुन लें कि अगर कोई साहब वोट का मतलब समझने की बाबत मगरिब की मोहताजी के रवादार नहीं तो भी ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इस निज़ाम बातिल में कोई इंसान या इंसानों का गिरोह तागूती मनासिब पर अज खुद अपना तकर्रुर नहीं करता। एक इंसान हो या कई इंसान हो, ये तागूत के जो मनासिब हैं इन मनासिब पर उसका तकर्रुर खुद नहीं हो जाता, उसका तकर्रुर खुद नहीं हो जाता। सवाल यह है कि वो कौन सा अमल है जो एक इंसान को आम हैसियत से बुलंद करके खुदाई के मर्तबे पर फाइज कर देता है। एक आदमी बजाते खुद कुछ नहीं बन जाता भाई, कुछ अमल है ना जिस अमल के जरिए से आदमी उस मकाम तक पहुंच जाता है। एक अमल है जिस अमल के जरिए से उस अमल को अगर आदमी दोहराता है तो एक मनसब पर पहुंच जाता है, एक मकाम पर पहुंच जाता है, फिर वहां जाकर के उसका जो जी चाहता है वो करता है। तो वो कौन सी फॉर्मेलिटी है जो माबूदों की खाली आसामियां पुर कर देती है? वो क्या चीज है जो तागूत को जिंदगी और वजूद बख्शती है कि अगर ये ना हो तो तागूत को अपनी विलादत के लिए कोई और नाजायज तरीका अपनाना पड़े। अगर वोटिंग ही ना हो, निजाम जमहूरियत में अगर वोटिंग ही ना हो तो ये निजाम जमहूरियत कहां? निजाम जमहूरियत में अगर वोटिंग ही ना हो तो ये निजाम जमहूरियत कहां? एक साहब बड़े बुद्धिजीवी वो ये बोलते हैं कि नोट से जितनी तकवीयत निजाम तागूत को नहीं मिलती उतनी तकवीयत वोट से जितनी तकवीयत वोट से नहीं मिलती उतनी तकवीयत नोट से मिलती। अरे भाई, जब निजाम तागूत या निज़ाम जमहूरियत में जब वोटिंग ही नहीं होगी तो फिर वो निज़ाम जमहूरियत बाकी कहाँ रह जाएगा? उसका सबसे मजबूत स्तंभ यही। तो कौन सी चीजें, वो क्या चीज है जो तागूत को जिंदगी और वजूद बख्शती है कि अगर ये ना हो तो तागूत को अपनी विलादत के लिए कोई और नाजायज तरीका अपनाना पड़े? वो कौन सा अमल है जो उलूहियत के कुछ खसाइस आसमान से उतार के 5 साल के लिए जमीन पर ईवान पार्लियामेंट में महबूस कर देता है? हम पूछते रह गए कि मौलाना साहब आप ये जो कुछ बयान फरमा रहे हैं वो कौन सी लाल किताब में, जरा वो लाल किताब बताइए। भाई लोग पूछते हैं कि वो लाल किताब क्या है, भाई लोग पूछते हैं कि वो लाल किताब क्या है। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास में अगर ऐसी कोई बात है तो लेकर आओ। कुल हाथू बरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लो तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तुम सच्चे हो ही नहीं, दलील कहां से लाओगे? झूठे, मक्कार, दगाबाज, धोखेबाज। तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करदा कुरान को पढ़ा तो लेकिन समझा नहीं। जैसा कि मैंने जुमे के खुतबे में भी बयान किया था कि मसलक और फिरके को अपने हलक से निकाल कर बाहर करो, तो कुरान तुम्हारे हलक के नीचे जाएगा। ला युजाविजु तराकीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक कि हालत से नीचे नहीं उतरेगा। क्यों नहीं रहा है? उतर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं रहा है कि तुमने हलक तक तो अपने मसलक को भर रखा है। जान लो अगर मसलक पर तुम्हारी मौत हुई तो यह असबियत की मौत होगी, जाहिलियत की मौत। तभी यहूदियों का यह मिशन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहेंगे हम उनकी मुखालिफत करेंगे। आज तुम्हारा मिशन है ये कि जो कुछ भी तुम अमल करोगे तुम्हारे अमल की मुखालिफत हमारा मिशन है। किसके ट्रैक पर चल रहे हो तुम? किसकी सुन्नत को अपना रहे हो? किसके बताए हुए तरीके पर चल रहे हो? ये सारे के सारे तरीके जो तुम अपना रहे हो वो तुम्हारे बाप हुई बिन अख्तब के, जो उसने कहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की मुखालिफत करता रहूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि तमाम के तमाम अदियान बातिला पर इस दीन को गालिब कर दे। नबी की जिंदगी का मिशन ये, और तुम्हारी जिंदगी का मिशन कुछ और। कभी MIM को जिताना, कभी कांग्रेस को जिताना, कभी बीजेपी को जिताना। गोया जिधर बम नजर आए उधर हम।
जिधर ताकत नजर आए उस तरफ चले जाना। तुम्हारा हाल ये हो गया। अब तुम्हारा हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जलील और रुसवा कर दिया। अभी आखिरत का अजाब बाकी है। अब भी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखो तुम्हें मोहलत मिली है। कब तक? मरने से पहले पहले तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ गए और पक्के सच्चे मोमिन और मुस्लिम हो गए और तुम्हारा ये इस्लाम तुम्हारे अमल से साबित होने लगा, तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी निजात फरमा दे, नहीं तो तुम्हारी निजात खतरे में है। इतनी बात आप अच्छी तरह से जान लो। इसी चीज़ को हम कल इंशाअल्लाह कल के दर्स में और बयान करेंगे। वक्त कैसा आधा घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। हम ज़्यादा लंबे प्रोग्राम खुद इसलिए नहीं करना चाहते कि छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, घंटा आधा घंटा आधे घंटे के 30 मिनट 35 मिनट के कम से कम आदमी इतना वक्त निकाल करके इनको सुन ले और समझने की कोशिश करे। अगर आप उसने दिन में आधा घंटा भी निकाल लिया तो एक प्रोग्राम वो आसानी से समझ सकता है। और मैं समझ रहा हूं कि अगर कोई हकीकी मानों में किसी बात को समझने के लिए बैठा है और प्रोग्राम का अगर एक पार्ट भी अगर वो सुन ले तो एक पार्ट भी उसको समझने के लिए काफ़ी, हक समझने के लिए एक पार्ट ही काफ़ी है। और ये सारे दलाइल तो उन लोगों के लिए है जो मक्कार हैं, समझने की बात भी ना समझ बने हुए हैं। अच्छी तरह से समझ लिए कि हाँ ये सब कुछ सही है, लेकिन फिर इनकार करने वाले बने हुए हैं। तो ये सारे दलाइल उनके लिए, पहले तुमसे दूसरे परेशान रहा करते थे, अब तुम हमसे परेशान हो। तुम दूसरों से दलील मांगते थे, अब हम तुमसे दलील मांग रहे हैं कि दलील लाओ, लेकिन अब तुम्हारे पास सिवाय तावीलों के कोई दलील मौजूद नहीं। अगर तुम हक पर होते तो तुम्हारे पास दलीलें मौजूद होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि ये निज़ाम तागूत का हम कुल्ली तौर पर इनकार कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हालात ऐसे बना दे कि हम इससे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब कर सकें, बच सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्दो कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खस खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।